It's Mr. Feroz Aziz, Deputy CEO at Anand Rathi Wealth, joins us. Namaskar, Feroz ji, and a very warm welcome. No better way to put it rather than saying that it's a Eid gift by the government of India to its citizens. A nice cut in GST, a good monsoon. Before that, a cut in interest rates and income taxes. Are we getting ready for a new high on Dalal Street? A very warm welcome and namaste to you. Hello, Shail sir. Namaste, and thank you to have me on your show. Like you said, this is a great impetus and a great gift for the festive season and for all the festive season which is there around this calendar year. What we see this is one of element out of the large narrative or large number of actions which are being done for consumption. You've gone into the new tax regime. You've reduced the slabs there. You've brought in multiples of 4 lakh slabs and 5 lakh ki rates, like 4, 8, 16. So you've simplified the tax rate. You've made sure that India does not pay tax up to 12 lakhs, which is a big thing, which is 7 times the per capita income, 6 times the per capita income. Then you have some degree of rate cards, CRR cards to infuse liquidity and drive consumption. Now you have GST 2.0. So I personally think if you see all of this, the micro and the macro of India become robuster as we progress. And that's why you see markets have not corrected in spite of FIIs being so negative on India that they've sold 4 lakh crores, 4 trillion rupees has been sold over the last 1.5, 2 years. You see FII shorts, which I'm sure you track on index futures, is 92% are short, 8% were long as of yesterday. So in spite of that kind of mass exodus, markets don't correct because the domestic impetus and all those actions which have been taken over the last 1 year from July 2024 are helping the markets. Right. Feroz ji, now how is the Anand Rathi Wealth Research team navigating this GST changes? As also there has been a ratings upgrade that happened about a fortnight ago, a slew of positives now on Dalal Street. What is the view at Anand Rathi Research in terms of where should fresh money come in? What should be the 1 or 2 sectors, 3 or 4 large caps, maybe 10 odd mid caps where money can be invested? Shelsa, now if I just step back and see, I personally think from an asset allocation standpoint, if I begin there, India's asset allocation to equity is abysmal and such a sorry state. Almost 1,000 lakh crores in household savings. You have only 6.5 to 6.7% in equity, both through mutual funds and direct equity. So that's abysmally small. We in studios actually discuss 60% होना चाहिए, 70 होना चाहिए, 80 होना चाहिए. But India, देश भर का इंडिया का asset allocation तो गड़बड़ाया हुआ है. Point one. So I personally think if you get a 1 year time correction, which is almost last year, 24th September is when we touched the peak, you've got a price correction of 6%, you've got an earnings up of almost about 11-12% on Nifty. इसके बाद भी अगर एक आदमी कहता है मैं एक मुश्त पैसा नहीं लगाऊंगा, तो आप इक्विटी के हैं ही नहीं. आप नो पेन नो गेन, सिर्फ मुहावरों में अच्छा लगता है आपको. तो आपको लमसम एक मुश्त पैसा लगाना है, 60-70% इक्विटी में रखना है. If it is 5 year plus monies, and I meet so many people who have 10-year monies with 5% in equity, it feels so claustrophobic and so irritating to see that कि यार एक साल से रिटर्न नहीं बनी. मैं किसी शख्स से मिला, शैल सर, on a more, he's saying एक साल से कोई रिटर्न नहीं बनी, why should I buy it? He was sitting in a house which out of the last 10 years only 2 years it has given a positive return. मैंने कहा सर रियल एस्टेट में तो आपने प्रश्न नहीं पूछा. इक्विटी आती है, आप अपनी तराजू बदल देते हैं, आप लेंस बदल देते हैं. ये ऐसे तो आप खुद ही नुकसान करेंगे, राइट? किसी ने ये हिसाब नहीं किया कि मैं जिस घर में बैठा हूं 10 साल से खरीदा था, 2011 में क्या रिटर्न आई, 2012 में क्या आई, 13 में आई. किसी के पास इंडिया में हो जाए ना तो मैं नाम बदल दूं. बट इक्विटी होते ही 1 साल नहीं चला तो खड़े हो जाते हैं एक टांग पे, राइट? सो पीपल हैव, ये बुनियादी चीजें जब तक एड्रेस नहीं होंगी अब. जी, यस शैल साहब जी, आप अपनी बात पूरी रखिए, फिर मैं कुछ कहता हूँ. यस, मेरी यही है कि पहले तो एसेट एलोकेशन ठीक कर लें.
इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। 5-10% की गिरावट को एम्ब्रेस करें, उसको हग करें। क्योंकि अगर लास्ट 1 ईयर से मार्केट ने कुछ रिटर्न नहीं दिया, फिर भी एसआईपी की रिटर्न पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट 21,703 बार टच कर चुकी है। तो एसआईपी का खरीदार, ये जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की हम किताबी बातें करते रहते हैं, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। 2024 से 25 के बीच में मार्केट कहीं नहीं गई, 6% नेगेटिव है। बहुत सारी स्कीमों की एसआईपी की रिटर्न 5% पॉजिटिव है। 10% एक्स्ट्रा रिटर्न मिली है मार्केट से, सिर्फ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से। जी। तो फिरोज़ जी, क्योंकि आप दिल के बहुत अजीज़ हैं मेरे, तो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। पिछले 5 साल में एक भी जना ऐसा नहीं है जो आपको टकराएगा पूरे भारतवर्ष में जो अपने एसआईपी से दुखी हो, एक भी, पिछले 5 साल का अगर आप रिटर्न देखें तो। दूसरा, इक्विटी तो इतनी बदनाम है, क्या कहिए। आप कह रहे हैं 1 साल 2 साल में पैसे नहीं बने। इक्विटी में तो लोग सोचते हैं मैंने आज सुबह ख़रीदा, मेरे को शाम को 5-7-8% पैसा चाहिए और ये रोज़ होना चाहिए मेरे साथ। मतलब कई तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं भाई हम रोज़ अपने कैपिटल पे 1% क्यों नहीं कमाते। मैंने कहा भाई तुम धन्य हो, और बस भगवान ना करे आपके साथ कोई हादसा हो। लेकिन फिर भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास 10 साल के लिए कैपिटल है और आपने सिर्फ 5% इक्विटी में लगा रखा है, तो आप अपने साथ और अपनी आने वाली पुश्त के साथ एक अन्याय कर रहे हैं। देखिए, इक्विटी ही ऐसी चीज़ है जो कंपाउंड करती है, और अगर आप इक्विटी में नहीं रहेंगे तो आप एक सब ऑप्टिमल पोर्टफोलियो लेके चलेंगे जिसमें इन्फ्लेशन उसको तहस नहस कर देगी अगले 10-12 साल में। चलिए, ये बात तो आपने और हमने बहुत अच्छी समझी फिरोज़ जी। और अब जिसकी किस्मत में इक्विटी से पैसा नहीं है तो वो इस बाज़ार में नहीं है, अब उनकी हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो हैं उनका फ़ायदा करते हैं। बताइए क्या ख़रीदवा रहे हैं, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, क्या पसंद है आपको? शैल जी, ये लार्ज मिड और स्मॉल का एक संतुलन सा बना हुआ है मेरे हिसाब से। जनवरी में ऐसा नहीं था, स्मॉल कैप थोड़े आगे चले गए थे। जी। अब एक इक्विलिब्रियम है, दैट्स पॉइंट वन। ये क्यों मैं मानता हूं कि लास्ट ईयर जो नैरेटिव किया गया लोगों ने कि भाई स्मॉल कैप की अर्निंग नहीं आई, वो गलत नैरेटिव है न्यूमेरिकली। क्योंकि जो 250 कंपनियां एनएससी स्मॉल कैप 250 जिसके म्यूचुअल फंड मैनेजर ट्रैक करते हैं, उस 250 कंपनियों की अर्निंग्स अगर कोई कंप्यूट कर रहा है तो -9% आ रही है। बट उसमें 62 बदलाव हो चुके हैं एक साल में। वो बदलाव को हटा दो तो 18% की पॉजिटिव अर्निंग आई है एफवाई 25 में। बट हम सुनते हैं कि भाई अर्निंग्स आई नहीं। वो 62 चेंजेस जो हैं उसको कांस्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम कंप्यूट करते हैं आनंद राठी में। सो जनवरी में स्मॉल कैप आगे बढ़ गए थे अपनी औकात से, उनको औकात दिखा दी गई है, मार्केट ने सही करती है मार्केट, और आज की डेट में इक्विलिब्रियम। अगरचे इक्विलिब्रियम हो तो एलोकेशन ये नहीं है कि एक तिहाई डालना। एलोकेशन इक्विलिब्रियम के टाइम पे 60-20-20 होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का स्मॉल कैप भी 500 पे खत्म हो जाता है। सेबी ने 500 में ही निपटा दिया लार्ज मिड और स्मॉल, बाकी 1800 को तो माइक्रो कैप करार दिया गया है। सो दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम के स्थिति में 60-20-20 दैट विल बी टू कैपिटल एलोकेशन ऑन मार्केट कैप बेसिस। Okay, fair point. So that's the allocation structure that Anand Rathi research has in mind. फिरोज जी, एक बात बताइए, बावजूद इसके कि चारों तरफ हम लोग एक अच्छा हरा गहरा रंग देख रहे हैं बाज़ार में, कोई भी कारण हो, वो कारण सब अच्छे ही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आप परे हों, कुछ ऐसे सेक्टर्स जो आपको पसंद ना आते हों, कोई भी कारण हो, या उसमें आप और सरकार की तरफ से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर अभी कुछ और सरकारी तौर पर करना बाकी है तो यहाँ से परे रहा जाए, जो आपकी नापसंद हो? यस शैल जी, आपका मैंने वो क्वेश्चन सेक्टर वाला बाय मिस्टेक डॉज कर दिया था, तो उस पर पहले जिसको जो पसंद है वो बता देता हूँ, फिर नापसंद भी बता दूंगा। कंजम्पशन की जो इम्पेटस है, वो कंजम्पशन वो होते हैं जो बिजनेस, ऑफ कोर्स शैल जी आपके व्यूअर्स के लिए कह रहा हूँ, कंजम्पशन थीम उसको कहते हैं जहां एक बिजनेस अपने सीधे ग्राहक को बेचता है, B2C बिजनेस, इसको कंजम्पशन बिजनेस है। उसमें 6 सब सेक्टर होते हैं। होता है एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, अपैरल, टेक्सटाइल, सॉरी टेलीकॉम, टूरिज्म और हेल्थ केयर। ये 6 जो हैं कंजम्पशन की बुनियादें हैं।
इसमें अच्छी बात यह है कि कंजम्पशन की इतनी आज चर्चा हो रही है, बट पास्ट परफॉर्मेंस -2% रहा है। 27 फंड है कंजम्पशन के और 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कम ही बार ऐसा होता है कि जिस सेक्टर की इतनी ज्यादा बात हो रही हो और पास्ट परफॉर्मेंस ना हो। जब डिफेंस की बात हो रही थी 1.5 साल पहले, तो ऑलरेडी डिफेंस की जब बात इतनी डेसिबल पे पहुंची थी, तब मैं रिटर्न देखता था 50% तो 6 महीने में आ गया था। तो मुझे बड़ा डर लगता था कि रिटेल गलत टाइम पे खरीदेगा, और गलत टाइम पे भी खरीदा भी उसने, राइट। और फिर उसके बाद करेक्शन हो गई। ये पहली बार ऐसा हो रहा है लास्ट 5 सालों में कि जिस सेक्टर की सबसे ज्यादा आज वार्तालाप हो रही है, वो सेक्टर की रेयर व्यू मिरर इतनी अच्छी नहीं है, तो रिटेल महंगा नहीं खरीद रहा। दैट्स वन सेक्टर और अ थीम मोर सो, विच इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल गुड्स की सेक्टर्स जो है वो इतना अच्छा नहीं करेंगे। बट मेरा मानना है कि आई विल टेक अ कॉन्ट्रेरी बेट। ये छोटी शॉर्ट टर्म नैरेटिव है, इन्वेस्टर को उससे घबराना नहीं चाहिए। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के सेक्टर अच्छा करेंगे। एक दो सेक्टर्स मुझे लगता है कि काफी बढ़ गए हैं आगे। वो मेरे हिसाब से डिफेंस सेक्टर मुझे इतना पसंद नहीं है, आज भी पसंद नहीं है। आई थिंक उसकी इवेंट्स की वजह से वो काफी आगे चला गया था। आई थिंक दैट्स वेरी स्पेसिफिक एंड सर्टन सेक्टर्स इन द इंडस्ट्रियल स्पेस, उनकी जो पीज हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल हैं मैन्युफैक्चरिंग में। उधर थोड़ा आपको संभाल के चलना है। और अगर हम देखते हैं कंजम्पशन के टॉप 10 स्टॉक्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल गुड्स के टॉप 10 स्टॉक्स में, मैंने देखा कि आज भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वो 10 में से 7 स्टॉक आज भी खरीद रहे हैं लास्ट क्वार्टर। और कंजम्पशन में 8 स्टॉक में लोगों ने पैसा लगाया है अच्छा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में। सो द नैरेटिव इज वेरी डिफरेंट इन व्हाट मैथ इज सेइंग। फिरोज जी, जहाँ पर आपको ये इंस्टीट्यूशंस खरीदते हुए दिख रहे हैं कैपिटल गुड्स, इनके ज़रा एक दो नाम लेंगे आप? शैल जी, मैं स्टॉक्स के नाम नहीं ले पाऊंगा, मैं मार्केट कैप के आधार पे कह रहा हूं। तो यूजुअल सस्पेक्ट्स जी होंगे, जी अगर जी। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो आपको इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी में जो भी टॉप 10 फ्री फ्लोट मार्केट कैप हैं, उनमें 8 में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने वेटेज बढ़ाई है और रिटेल ने वेटेज घटाई है। सो दोज आर गुड साइंस। जब इंस्टी खरीदे और रिटेल बेचे, स्टॉक नीचे हो, तो अच्छी कॉम्बिनेशन मानी जाती है। जी। दरअसल ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, इस तरीके के रिसर्च बहुत ही कम इंस्टीट्यूशनल हाउसेस में होती है। आनंद राठी वेल्थ रिसर्च में इसलिए ये संभव है क्योंकि ये कंपनी ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स के एसआईपीज़ में हैं, और उन फंड्स के जो पोर्टफोलियोज़ हैं उनको बहुत ही बारीकी से समझा जाता है। जब उसमें से आपको 10-12 पॉइंटर्स मिलते हैं अच्छे, तो उसके बाद उसमें सेकेंडरी रिसर्च की जाती है। तो ये जो बात बताई गई कि भाई इंस्टीट्यूशनल स्टेक बढ़ रहा है कैपिटल गुड्स में पहले 10 काउंटर्स में, और रिटेल कम हो रहा है, और ध्यान दीजिए कि कैपिटल गुड्स इंडेक्स जो है वो लगभग 30-35% करेक्ट कर चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बाज़ार में ट्रिगर माना जाता है कि डीप पैसे वाला व्यक्ति जब पिटा हुआ शेयर खरीदे तो समझो कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो वैसे ही आने वाले हैं। फिरोज़ जी, ये बताइए कि इंडिसेस में कहाँ पर आपका सबसे मजबूत विचार है? क्या मिड कैप, क्या स्मॉल कैप, या निफ्टी जैसे इंडेक्स आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे अगले 6 महीने में? आई थिंक शैल जी, इंडिसेस में मेरे हिसाब से जो अगले 6 महीने, ये कुल मिला के ये फाइनेंशियल ईयर में, निफ्टी जो आपने प्रश्न वापस पूछा था, मैंने आंसर, मेरा ये मानना है कि देर इज 85-90% चांस दैट निफ्टी इस फाइनेंशियल ईयर में अपनी पीक को रीएस्टैब्लिश करेगी और अपने कैनवस को बढ़ाएगी। ये 80-90% प्रोबेबिलिटी है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस होगी या अंडर परफॉर्मेंस होगी, इस पे आधारित होता है कि उस इंडिसेस के टॉप 20 स्टॉक्स कौन से हैं। क्योंकि क्या होता है कि स्मॉल कैप में सबसे छोटा स्टॉक जो है उसकी वेटेज है 0.1%, राइट, और सबसे टॉप स्टॉक की भी 3.5% की है।
निफ्टी में जो ये 250 कंपनियां हैं, तो मेरा ये मानना है कि टॉप 20 जो आज एनएसई स्मॉल कैप की 250 के जो टॉप 20 वेट्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 42% की वेट है, उसकी वैल्यूएशन इतनी मुझे स्ट्रेच नहीं लगती। तो आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस ऑफ स्मॉल कैप एट एन इंडेक्स लेवल इज अनलाइकली। ओके, ओके, चलिए ये बात सही है। और ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि हर इंडेक्स की भाग्य रेखा उसके पहले 10 या 12 स्टॉक ही रचते हैं, क्योंकि वहीं पर आप सबसे ज़्यादा वेटेज होते हुए देखते हैं। और ये बात मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए भी लागू है। फिरोज जी, एक बात आपकी रिसर्च टीम पुख्ता करेगी, वो है सीमेंट काउंटर्स पॉजिटिविटी, क्योंकि 28% जीएसटी से हम 18 पे आ गए। और सीमेंट एक ऐसा सेक्टर था जिसने बहुत ही परेशानी का दौर देखा है। पिछले 3 साल कंसोलिडेशंस, एक्विजिशंस वगैरह हो रहे हैं। यहाँ पर क्या राय बन रही है आपकी रिसर्च टीम में, क्या सोच रखते हैं आप? मेरे हिसाब से ये जो जैसे कैपिटल गुड्स के सेक्टर के अंदर सब सेक्टर जैसा आता है, क्योंकि कोई भी कैपिटल फॉर्मेशन 3 जगह से होती है, और वो कैपिटल फॉर्मेशन प्राइवेट कॉर्पोरेट से हो सकती है, हाउस होल्ड से हो सकती है, या फिर पब्लिक सेक्टर से हो सकती है। पब्लिक सेक्टर की जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो थोड़ी स्लो हुई है लास्ट 1 ईयर, बट हमें देखना है कि बजटरी एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर वॉज 12%, आज 22% की एक्सपेंडिचर है। तो काफी बड़ा है मामला। 3-4 लाख जी। करोड़ खर्च करते थे हम, आज 11-12 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। प्राइवेट कंजम्पशन बहुत घटिया रहा है, डी ग्रो हुआ है। कैपिटल फॉर्मेशन 5.5 लाख करोड़ से 4.97 लाख हो गया लास्ट ईयर। जैसे ही ब्याज दरें घट रही हैं, उधर से भी आएगा। प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन भी होगी। हाउस होल्ड कैपिटल फॉर्मेशन थोड़ा सा लैकलस्टर रहा है। सो मेरा ये मानना है कि सीमेंट इज अ ग्रेट प्ले इन अ स्ट्रक्चरल कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमी। और ये जीएसटी की जो रिडक्शन है एंड आज की जो करंट स्थिति है, उससे सीमेंट स्टॉक्स को फायदा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। एज अ सेक्टर ये इतना छोटा सेक्टर है, उसकी वेटेजेस इतनी कम है, एनएसई 500 और निफ्टी में तो ना के बराबर है, तो उसको एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के माध्यम से प्ले नहीं कर पाएगा। और स्टॉक के माध्यम से करने जाए तो एग्जिट तो आपको शैल जी की सुन के एग्जिट एंट्री करनी है। मेरा यह मानना है कि इट्स अ स्ट्रक्चरल गुड सेक्टर टू ओन, बट नॉट ओवर ओन मोर देन 4-5% एक्स्ट्रा वेट। जी। एक और बहुत अजीब सा हादसा इस बार ये हुआ फिरोज जी, कि नॉर्थ इंडिया में गर्मी नहीं पड़ी। गर्मी क्या, इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर बारिश हो रही है कि क्या बम्बई वाले मज़ा लेते होंगे बारिश का, जो इस बार दिल्ली वालों ने झेला है। चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन कंज्यूमर गुड्स जैसे एसीज, फ्रिजेस, इस बार उनकी सेल बहुत ही मायूसी के दौर से गुजरी। और वही हाल आपको स्टॉक्स का होता हुआ दिखा। आप ब्लू स्टार देख लीजिए, वोल्टास देख लीजिए, अन्य कई काउंटर्स देख लीजिए, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही नीचे हैं। इस सेक्टर में आप किस तरीके का रुझान रखते हैं इस जीएसटी रेट कट के बाद? आई थिंक इसका जो फायदा है वो सिर्फ मोमेंटरी नहीं होगा, बहुत लॉन्ग टर्म फायदा होगा इस सेक्टर को। देखिए, जैसे अगर हाउस होल्ड कैपिटल फॉर्मेशन होती है तो व्हाइट गुड्स की सेल काफी अच्छी होती है, बिकॉज गवर्नमेंट खर्च करती है तो रोड बनाती है, राइट, ब्रिजें बनाती है, उसमें एसी तो नहीं लगते। हाउस होल्ड कैपिटल फॉर्मेशन में काफी व्हाइट गुड्स का फायदा होता है। तो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बेनिफिट मिलेगा। आज की जो जीएसटी रिडक्शन है, उसकी जो करेक्शन इन टर्म्स ऑफ इसको फैक्टर इन करने के लिए जो प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेंगी, वो 1 दिन या 2 दिन में नहीं, उसकी काफी सारी इंचिंग अपवर्ड्स ऑफ री रेटिंग इन दीज बिजनेसेस आर पॉसिबल। ठीक है। और जाते जाते फिरोज जी, हमारे दर्शकों को 3 फंड्स बता के जाइए, या बल्कि 4। एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक लार्ज कैप फंड, एक मिड कैप और स्मॉल कैप फंड, जो आजकल आनंद राठी वेल्थ के जो मैनेजर्स हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, अपने अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। बिल्कुल शैल जी, तो हम अल्ट्रा एचएनआई अरबोपति को भी यही रिकमेंडेशन देते हैं कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाइए। और डायरेक्ट इक्विटी हमने एनालाइज करके देख ली, बहुत लोगों की 10-10 साल में उन निफ्टी को बीट नहीं करते, काफी लोग
30-40% लोग ना। अब रहा सवाल सर ने जो पूछा जी HDFC जी फ्लेक्सी जी कैप, जी जी ये हमारी चॉइस रहेगी। HDFC फ्लेक्सी कैप वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड्स इन इंडिया ऑन द फ्लेक्सी कैप, जो आपका भी फेवरेट है शैल सर, आप भी अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उस स्कीम में। दूसरा है कोटक इमर्जिंग मिड कैप स्पेस में, उधर पंकज टिब्रेवाल जी छोड़ गए, बट फिर भी हमने उसको होल्ड किया, क्योंकि आंकड़ों के आधार पे जो नए फंड मैनेजर थे वो भी, उनकी जो हॉलीडे एनएवी थी ना शैल जी, सबसे अच्छी जो हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कंप्यूटेशन किए, उससे काफी आंखें खुली हमारी। तो जो भी इंडिया के फंड मैनेजर हैं, हम एक चीज ऐसी चीज कंप्यूट करते हैं कि अगर ये पूरे लोग छुट्टी पे होते तो एनएवी क्या आती, ये कंप्यूट करते हैं मैथमेटिकली। तो अब अगर बंदा छुट्टी पे था और अगर इंसान अमीर होता इन्वेस्टर, तो वो तो फंड मैनेजर ने ऑफिस पहुंच के इन्वेस्टर की वैल्यू डिस्ट्रॉय की। तो ये जो फंड मैं कोटक इमर्जिंग को आज भी रख रहा हूं, क्योंकि उनके जो नए फंड मैनेजर थे वो हर साल ऑफिस 250 दिन अगर आते हैं तो एक्स्ट्रा रिटर्न बनाए, उनकी हॉलिडे एनएवी एक्चुअल एनएवी से कम थी। तो वो सेकंड स्कीम। तीसरा, और स्मॉल कैप में इन्वेस्को स्मॉल कैप हमने तब चूज किया जब उसकी परफॉर्मेंस घटिया हुई थी। बट ताहिर साहब बादशाह जो हैं, उनके नाम के आगे भी बादशाह लगा हुआ है, उनकी परफॉर्मेंस में भी बादशाही दिखी है। वो हमारे स्मॉल कैप के फंड मैनेजर रहे हैं 2 साल से, और उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये तीन चीज फ्रॉम अ स्कीम पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। फिरोज जी, मैं आपकी तीनों बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। फंड्स के ज़रिए जाइए। इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग में अक्सर ये देखा गया है कि एक बेसिक इंडेक्स को ही एक आम निवेशक अंडर परफॉर्म करता है। फंड्स में जाइए, उससे आपको बहुत ही अच्छी मोमेंटम मिलता है और सांत्वना मिलती है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है अगर आप सिप के ज़रिए से जाएं। और ये तीनों फंड्स जो फिरोज़ जी ने सजेस्ट करे हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप, इसका पहले नाम HDFC इक्विटी हुआ करता था। उससे पहले जब फिरोज़ जी स्कूल में थे तो इसका नाम ज्यूरिक इक्विटी हुआ करता था। और कोटक इमर्जिंग और इन्वेस्को स्मॉल कैप, बहुत ही तीन शानदार आपको ईद उल मिलाद से पहले गिफ्ट दिए गए हैं फिरोज़ जी द्वारा। इन सब में SIP रखिए। फिरोज़ जी, कल ईद है। हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको, परिवार को, आनंद राठी वेल्थ के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहार का गिफ्ट, जिसे ईदी कहा जाता है, वो पहले ही मिल गया है सरकार की तरफ से। अब आपको इस ईदी को स्पेंड करना है ताकि बाज़ार में, कंजम्पशन में, GDP में और रिटेल एक्सपेंस में सबका इजाफा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज़ जी। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू शैल सर।